there he comes. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the one, the only Nana Patekar साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. We also have with us Farida Jalal ji. उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. Time to invite on stage our producer साहब, of course, Sajid Nadiadwala साहब के लिए जोरदार तालियां. And of course. Welcome, Sajid sir. Thank you so much. ना And of course, filmmaker extraordinaire Vishal Bhardwaj जी के लिए जोरदार तालियां. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां फरीदा मैम के लिए एक बार. Okay, Shahid bhai, I would request all you lovely people to kindly be seated because we'll take a look at the trailer first और उसके बाद बड़ी सारी बातचीत करनी है. So Avinash, couple of months or years or couple of films. All my friends know there's some very close friends of mine, Omal, Meena and Bharti ji. They know I'm still anxious after 41 years also. It's a very good high for me. I think the day I lose this anxiousness, I will be hanging the boots. So I hope this keeps alive. Vishal sir, the next question is for you. I wanted to ask you, we know that this film is based on true events. Was there any permissions taken from the family before you went ahead with the film? Actually, मैंने जैसे कहा ना, ये एक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई करके एक बुक है जो हुसैन जैदी साहब ने वो कहानी लिखी है. तो मैंने उस कहानी के राइट्स लिए और उस कहानी के राइट्स लेके उसके ऊपर ये फिल्म बनाई है. आई डेंट थिंक बिकॉज मैंने वो उस कहानी का जर्म है और उसके ऊपर बेस्ड है, कैरेक्टर्स वही हैं, मगर इसमें हमारा फिक्शनल भी बहुत है और वो परमिशन शायद हुसैन जैदी साहब ने ली होगी या लेनी चाहिए थी. तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई ज़रूरत है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ए स्टोरी विच इज़ पार्ट ऑफ ए बुक. Vishal sir, my question to you, it's a continuation of this question because you said it's taking you 10 years to make this film. Did you think of making it before this with a different cast? Was there a cast that was already in place for this film and the film didn't happen and it's finally happened now? एक्चुअली वो स्क्रिप्ट भी दूसरी थी. जब वो कास्ट थी तो वो स्क्रिप्ट भी कुछ और थी. ये कहानी मैं कह रहा हूँ ना, बनते यहाँ तक पहुँची है. इसका नाम ओ रोमियो है. नहीं तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस फिल्म का नाम ओ रोमियो होगा जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी. तो ये कहानी इवॉल्व होते होते तो जब कई बार बनने की कोशिश हुई तो हमेशा वो स्क्रिप्ट कुछ और हुई. ये स्क्रिप्ट मेरी बिल्कुल नहीं है. तो इसका उन जो पिछली जो चीज़ें थी उनसे कोई लेना देना नहीं. Got it. Thank you, sir. Avinash, my question is to you. Hi. Hi. It feels like gangster drama comes very naturally to you. Bombay Meri Jaan, Khaki, and now O Romeo. Has this become your genre now, or do filmmakers come to you specifically for gangster drama? Brother, if you had really seen my work, you'll see that all the genres that I really like to jump in, and I hope if this one brings me to the big screen, I don't care. All I want to do is make sure that people keep saying कि you're looking unrecognizable. But yeah, हर part में सुनते now I genuinely want to be recognized. Please recognize me. This is Avinash Tiwari, please. So I hope that happens, brother. Hi, my name is Monica from Viral Bollywood.
I have two-part question. One is for Shahid. Shahid, from the first time you worked with Vishal sir until now, what do you think has changed for you as a director? What was the first day on set in the first movie versus now? And my second question is to Avinash and Tripti. Since you guys have worked together so many times on very different projects, multiple characters, how do you see your journey as actors then from now? सर जब हमने पहली बार काम किया था आपने कितने नेशनल अवार्ड जीते थे? तब आई थिंक 3 या 4 3 तो 6 और नेशनल अवार्ड्स from the first time I worked with him to now. It's always a very adventurous, crazy journey whenever I have collaborated with Vishal. So as he said, शायद वो मुझे विरासत में मिले हैं. जो डैड के साथ वो नहीं कर पाए शायद वो मेरे साथ कर रहे हैं. ऐसा था पता नहीं क्या कि वो नहीं कर पाए. They have done iconic work. So for me, when I got to work with Vishal sir for the first time, I was very intimidated. बिकॉज मैंने उनको और डैड को और डैड बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बेटे की नज़र सबसे पहले अपने फादर पे ही जाती है. यू नो ही इज़ वर्क विद द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. तो जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का मैंने एक्चुअली पहले उनसे पूछा था सर ये रोल में आप मुझे क्यों ले रहे हो? आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू डिजर्व दिस. He said, but I feel that I see something that you can. That's what's coming in. We started with that. And of course, after that, he gave me Hamlet and Heather, which is a role which दुनिया में जो भी एक्टर हैं जो भी एक्टिंग करना पसंद करते हैं उनको पता है कि सबसे इंटिमिडेटिंग रोल वही होता है. Then we did Rangoon and now we're doing O Romeo. So I feel fortunate to be a part of his filmography and I'm thankful to him that he called me after 7 or 8 years of us not having worked together. But actually, call मुझे साजिद भाई का आया था. साजिद भाई called me, not Vishal sir. He called कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया. सर ऐसा हो सकता है कि मैंने ना दिया हो. रेखा मैम, don't you feel like that's a simpler relationship than this? I'm the first wife for this, I don't know. तुमने अच्छा पूछा. वो पीसी रेखा को यही बोलती थी कि हाउ कैन यू लिव विद दिस पर्सन. No comment. But Sajid bhai called me and he said that शायद मुझे लगता है तुम्हें ये स्क्रिप्ट सुननी चाहिए and I think this is a film that you should have in your filmography. So thank you Sajid bhai for offering this film to me and bringing it to me. विशाल सर आए, हम कई साल बाद वैसे ही मिले जैसे हमेशा मिलते हैं और सीधे इन्होंने स्क्रिप्ट खोली. हम ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठे थे टेबल पे. जापानीज स्टाइल टेबल थी और इन्होंने 2.5 घंटा फिल्म नरेट की. साथ में बीच में जो ये गाना हम सुन रहे हैं हम तो तेरे लिए ही थे वो उन्होंने बजाया और कहा दैट दिस इज़ द हार्ट ऑफ माई फिल्म. ये हमारी फिल्म की लव स्टोरी है. और फिर उन्होंने फिल्म नरेट की और बोला द कैरेक्टर ऑफ उस्तरा इज़ द कैरेक्टर दैट आई वांट यू टू प्ले. फिल्म ख़त्म हुई और बस मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया एंड आई सेड सर ये तो हमें साथ में करनी चाहिए. एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर और अब हम यहाँ हैं एंड super excited to share this film with you on the 13th of February. Thank you so much. My question. This is our third film together, right? First one was Laila Majnu, then we did Bulbul, and now O Romeo. It's been a beautiful journey, and I think I learned acting because of this guy. I remember being very nervous on Laila Majnu set. मुझे acting कहीं भी नहीं आता था तब. और मैं इतना नर्वस हो जाती थी कई बार कि मैंने सोचा यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस. जो सुनने के बाद अविनाश ही था जिसने मुझे बोला नहीं यार यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली एडवाइज मी टू गो फॉर एन एक्टिंग वर्कशॉप एंड दैट एक्टिंग वर्कशॉप चेंज माई लाइफ. So thank you Avinash, thank you for recommending that workshop. And it's been a beautiful journey. I think he's a wonderful person, very supportive co-actor. हमारी लैला मजनू को बुलबुल को बहुत प्यार मिला and मैं ये उम्मीद करूँगी कि ओ रोमियो को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले. मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मुझे जो खास फर्क लग रहा है वो ये है कि पहले 2 फिल्मों में हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे. अब हमारे पास लोग हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं. ये खास परिवर्तन आया है. अदरवाइज आई थिंक वी आर द सेम. वी स्टिल वर्क द सेम वे. One thing I definitely have to say that this time when I was working with Tripti and I came and told this to her. She was doing a scene and I was standing outside and मैंने उसको देखता रह गया कि यार ये क्या कर रही है. Suddenly there were certain things which suddenly you get surprised कि ये कहाँ से आया है इसके पास.
And I came to her, I said, "Hey, where did you learn this from? Please tell me, give me some insights." So I think it's a great relationship, working relationship that has continued, and I hope there are many more to come. Thank you. Hello, hi. Hi, this side. Hi, I'm Amar from Pop Diaries. Hello. Congratulations for the trailer. The trailer is amazing. It's a very good cut. I remember seeing one video. Sorry, my question is for Avinash, Tripti and Shahid. I remember seeing one video last year where you three went on a drive. And I thought it's a rom-com. It's a love triangle. Now, when I saw the teaser, the poster, and now the trailer, that whole memory has faded away. Can you tell about that drive? What is that a part of the film? And Avinash and Tripti, do you also share scenes together in this film? इसका जवाब विशाल सर दे पाएंगे। इस बारे में please, I was not there in that वो video morphed actually, मैं था नहीं उसमें. You are very much there. उसी दिन अविनाश लेट हुआ था सेट पे आने के लिए, मेरी ये मेमोरी उस ड्राइव की। बट आई थिंक हम लोग किसी दूसरे सिटी में काम कर रहे थे, वहाँ से ये लोग एंड शाहिद ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी वहाँ पे हायर की हुई थी ड्राइव करने के लिए, एक रेसिंग कार, तो उसमें शाहिद सबको दौड़ा रहे थे। मैं ये एक बात और सॉरी नहीं सर, आप कहिए सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हम इससे पहले कि आप लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाएं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके सवाल ख़त्म होने से पहले कि मेरे ना यहाँ बहुत सारे HODs बैठे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म को मेरी बनाने में, और हम सबको मालूम है कि ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क वी हैव डन। माय DOP Ben Bernhardt is here. Yes Ben is here. मुस्तफ़ा जो हमारे मैजिशियन है, जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, वो यहाँ पे नहीं है, पर तस्नीम आप उनकी वाइफ, प्लीज़ हाथ हिलाइए। देन वी हैव माय लॉन्गेस्ट कोलैबोरेटर फॉर वेरी लॉन्ग 25 ईयर्स से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। उनकी पहली फिल्म, मेरी पहली फिल्म मकड़ी, आरिफ शेख, हम लोग ये हमारी 5वीं फिल्म साथ में। देन वी हैव शांतनु एंड यश जो कि साउंड कर रहे हैं, और ये इन दोनों की पहली फिल्म है। और मैक्सिमा टाइम से आई है, मैक्सिमा लेट तो नहीं है, चली गई, चलो ठीक है, उसने बहुत अच्छा काम किया था, बताना उसे। फ्रेडी अगर हैं यहाँ पे तो हमारे VFX का जो काम किया है बहुत ही खूबसूरत, आई एम फीलिंग सो सिक्योर दैट फ्रेडी इज देयर। कृतिका HMU, कमाल की तुमने डेड बॉडीज बनाई है। मेरी क्रिएटिव प्रोड्यूसर जिनके बिना ये फिल्म इस लेवल पे नहीं पहुंचती, जो हमेशा पिलर की तरह मेरे पीछे खड़ी थी, प्रीति शाहनी। थैंक यू प्रीति। मनोज मित्रा जिनसे मैं बहुत लड़ा हूँ, वो अगर यहाँ हैं तो दोबारा लड़ने के लिए यहाँ आए। प्रशांत, रोचन, अमजद, मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मेघदीप, JJ एंड स्टुअर्ट, मेरा कोरियोग्राफर कुणाल, मेरा असिस्टेंट अनंत, सलमान, मेरे रिकॉर्डिस्ट, और अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ तो माफ़ करना। एक को भूलना बड़ा मुश्किल है, वो जो सामने बैठा हुआ है, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ टांग अड़ाता है और हमेशा मुझसे झगड़ा करता है, पर वो मोस्टली काफ़ी टाइम सही होता है। मेरे एसोसिएट डायरेक्टर अभयदत्त शर्मा, इसके साथ मेरा फर्स्ट CD समीर, और मेरे बहुत सारे असिस्टेंट, मेरे साक्षी, बहुत लोग हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोल पाऊँगा। वैसे भी मीडिया बोर हो रहा है ये सब सुन के कि ये अपने आप बाहर भी जाके कर सकते थे, हमें क्यों पका रहे हैं। तो सॉरी, बट नाउ वी कैन कंटिन्यू इफ देयर इज अ क्वेश्चन। विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है। हेलो, हाँ विशाल जी, यहाँ भावना शर्मा नवभारत जी। विशाल जी, जो आपका सिनेमा अगर उसकी बात करें तो बहुत ही अलहदा है, उस पर हमें लिखने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो कहानी के स्तर पे, हर डायरेक्शन के स्तर पे बहुत अलग रहता है, और आपके कैरेक्टर्स भी। लेकिन ऐसा क्या है आपकी फिल्मों में कि वो उस पर जो सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं,
थीसिस लिखते हैं और दूसरी तरफ जो मास है वो भी उसको पसंद करती है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे आप करते हैं अपने हर सिनेमा में? जी, दूसरी बात तो आप मेरा मन बहलाने के लिए कह रही हैं कि मास पसंद करती है। मास इस बार ज़रूर पसंद करेगी, पर मुझे ये इस बात का मालूम नहीं है। और मुझे खुद इस बात की, देखिए कहावत होती है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैं अपने बारे में वो चीज़ मानता हूँ कि मुझे अभी तक खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं इस लायक था क्या। जहाँ पर एक बात है कि ओशो ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर किसी बेवकूफ़ को पता है कि वो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ नहीं रहता, वो इंटेलिजेंट हो जाता है। तो आई थिंक मुझे मालूम है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो सच्चाई और वो इंटेलिजेंस, वो स्मार्टनेस, वो सूंपना वो आ गया था। Romeo, is there a do you understand each other better? Is there has that comfort level grown, and do you also find changes in each other? Obviously, कि पर्सनली बहुत तारीफ करते हैं, पब्लिकली मतलब पैंट उतार देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं पतलून पहनता हूँ, मैं कह भी नहीं सकता कि मैं पतलून नहीं पहनता। No, it's Vishal sir has a certain sense of humor. He's always expresses himself a certain way, and the fact that every time we do something together, I think we create something very fresh and unique and very cinematic. And the journey is always new and difficult and challenging every time. But I think that's how you become more mature. And I do feel that Vishal sir has evolved a lot as a human being. As a filmmaker, he was always amazing. But I think he's evolved a lot as a human being. And I think it's because who he is today, he's been able to make this film. Another version of Vishal Bhardwaj would have maybe at some point said, "Bas." But he's gotten through it, and it's still not a complete journey. Very proud to be a part of this film with him. Thing was Tripti, and it was कोई दूसरा या तीसरा कोई था ही नहीं। मेरे लिए तृप्ति थी, क्योंकि तृप्ति ऐसे फिट होती थी। और मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर में अगर एक चीज़ होती है इंटेलिजेंस और एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर एक एक्टर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसके साथ काम करना, और वो अगर कैमरे से शाई नहीं है, सो उसके साथ फिर आप उसको कुरेद के खोद के उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो मुझे तृप्ति से मिल के बात करके ये फीलिंग पहले ही आ गई थी कि इसके अंदर है। और मैं बहुत बार सरप्राइज़ हुआ हूँ, और मुझे लगता है तृप्ति का जो मैं कह रहा था, जो ढक्कन खुला है इस बार परफॉर्मेंस का, वो इट्स अमेजिंग व्हेन यू विल सी हर ऑन स्क्रीन। Tripti, what about you? Have you seen Vishalji's films? Of course. How did you feel when you got this? I- How tough was it? It was tough, I won't lie, but I think Vishal sir has been there with me through and through. जब मुझे पहली बार सर का कॉल आया था, I was very excited. I remember we had a narration in the office, और आधी चीज़ें ना आप नरेशन में विशाल सर आपके सामने बैठे आप सुन भी नहीं रहे होते। वो इतने प्यार से, जैसे कि आप देख ही रहे बातें करते हैं कि आप खो जाते हो कभी कभी। पर मैं बहुत एक्साइटेड थी सर के साथ काम करने के लिए। आज ट्रेलर लॉन्च है हमारी फिल्म का, इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट हर एक्टर की ना एक लिस्ट होती है व्हेन यू एंटर दिस फील्ड, व्हेन यू राइट डाउन। टुडे आई फील लाइक वन ऑफ माय मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रीम्स हैव कम ट्रू थ्रू दिस फिल्म, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। शाहिद, ऑन योर लेफ्ट। दो लोगों के बीच में ही होता है, वो तीसरा आप कोई जान नहीं सकता है, वो दोनों ही जान सकते हैं कि। तो मैं और शाहिद, आई थिंक हम लोग कहीं बहुत डीपर लेवल पे एस्थेटिकली हम लोग लगता है कि जैसे एक अणु से निकले हुए दो लोग हैं। तो इसलिए हम लोग कितना भी हम लोग डिफरेंसेस रह जाएं, हम एस्थेटिकली हमेशा एक साथ रहते हैं। Ladies and gentlemen, we'll take one last. Hi Sajid, hi on your right. Hi, how are you? I want to ask you, like in times when it's very difficult to draw audience to theaters, what makes you confident about this project? Like these days, it's very difficult to get audience to theaters. Your project has to be really massive. So what makes you confident about this project? Even Vishal and the actors can answer this. No, I feel been making films so many years, and we actually don't feel. I mean, I was talking to my
friends Jono, and they said, how come you backed Romeo? It's not your kind of cinema. So I said, I made Highway. अरे वो तो 10 साल पहले बनाई थी. I said, I made Chichore National Award. अरे वो तो 5 साल पहले बनाई थी. So what happens is actually, once you start making a film, you love the story. And getting an audience is the material which gets, I too can't get it. Every Friday from last 40 years we've been praying. ये जो Friday होता है ना कमाल है. And my son is also joining. तो मुझे तो लग रहा है अगले 40 साल Friday और 40 साल मुझे pray करना पड़ेगा. This is, I mean, we can do everything. We try the script, we try performance, reading, getting the best locations, trying to publicize the film maximum. But जब वो last होता है, जो film hit करानी होती है, उसके लिए ऊपर वाला याद आता है. And I think so that's the final thing. Hi, this is Samina here from Zoom Channel. My question is, I think he's the most supportive co-actor. Sorry, Avinash. पिक्चर चले ना चले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्लॉकबस्टर हो गई है बस. मुझे कहना चाहिए आएगा तेरा रोमियो आएगा. विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है. आप समझ गए होंगे कि मैं क्या. सर एक सेकंड पूरा नहीं हुआ अभी. हाँ मतलब आप अफशा को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे पास उस्तरा है यहाँ पे. But जितने भी मेरे co-actors थे इन फिल्म में, they've been very very supportive. I don't think I would have been able to pull this off without their help and support. And of course I did an acting workshop with Atul Mongia sir. उनका नाम मुझे mention करना था. He's just so brilliant. उनके वर्कशॉप में आप जाते हो सोच के कि आप एक्टिंग सीखोगे, but I think you come back with so much more information about life and about yourself. And I think with the help of sir, I got an opportunity to understand the depth of my character. And it's just been a brilliant journey यार. Every day there was, अभी अब विशाल सर की फिल्म में तो वो खुद में एक एक्टिंग क्लास है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ challenges आपको आप पे थ्रो करते हैं सर. And it's just brilliant. It's a beautiful experience. I think every actor should experience this. Okay. विशाल सर, मेरा सवाल आपसे है. बीप बीप बीप, आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा. वो रोमियो है, लेकिन फिल्म किस बारे में है, कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे आप? ये तो एक्चुअली इट्स ए लव स्टोरी, ओके, विद अ वायलेंट बैकड्रॉप, बट in its DNA, it's a love story. It's an unrequited love story of this character called Ustra. ये एक लव स्टोरी है. और जहाँ तक आप ये गाली और वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तो बीप 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 नहीं होना चाहिए. यही होना चाहिए जो कि पूरा बोला जा सके, क्योंकि हम एज सोसाइटी हम लोग बहुत ही हिपोक्रेट लोग हैं. हम सड़कों पे ये गालियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं. सिनेमा में, क्योंकि हर बुरा काम सिनेमा करता है. सिनेमा ही आपको बिगाड़ेगा, सिनेमा ही आपको सुधारेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. सिनेमा मेरे हिसाब से आईना है जो आपको दिखलाता है. नाना साहब की जो पहली फिल्म आई थी अंकुश में, तो मैं क्लास 11th या 12th में था, और मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं हिल गया था देख के वो परफॉर्मेंस उनकी. उसके बाद जो भी उन्होंने किया वो सब बहुत कमाल किया. कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज नाना साहब जो हैं वो, जैसे मैंने कहा ना, वो एक बदमाश बच्चा क्लास का जो होता है, जो कि जिससे टीचर भी कभी कभी घबराता है. और कोई तो नाना साहब वो है कि वो आपको मालूम है, और पर वो आदमी दिल से ना एकदम मोम की तरह है कि आप छू लो तो वो रो पड़े. इस तरह का इंसान है नाना जो है. पर यह है कि ये ऐसे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि उनके साथ काम नहीं करना. पर यह है कि कभी कभी जर्नी होती है. मनोज बाजपेयी मेरा कॉलेज का दोस्त है. हम दोनों एक रूम में साथ में रहते थे. मनोज रामजस में रहता था, मैं हिंदू में. मनोज ऑल द टाइम ही यूज्ड टू बी इन माई रूम. पर मैं मनोज के साथ आज तक काम नहीं कर पाया. मुझे दुख है इस बात का. मनोज बहुत गुस्सा रहता है मुझसे इसलिए. और पर नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कुछ ऐसे कभी कभी बहाने होते हैं कि नहीं, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, और कभी आप चाहना भी नहीं चाहते हैं. थैंक यू सो मच सर. कॉर्पोरेट भी एक प्रॉब्लम है कि जिस वजह से इसमें टाइम लगा, जो आप चाहते थे करना, क्योंकि कॉर्पोरेट जिस रूट से आप आते हैं, शायद कॉर्पोरेट उस तरह के सिनेमा को सपोर्ट ना कर पाए. नहीं, आई थिंक कॉर्पोरेट तो जब था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था,
जब एक कॉर्पोरेट हुआ करता था। अब ये क्या हुआ, जब से OTT आया तो उसने पूरा वहाँ से बैलेंस बिगड़ना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं कि OTT की कॉर्पोरेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम। इनफैक्ट आई मेड हैदर इन 2014। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में हैदर का HP बनाया जा सकता है। सो कॉर्पोरेट, आई थिंक कॉर्पोरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो एक सिस्टम होता था कि आई ऑलवेज से दैट फिल्म मेकिंग इज एन इज ए आर्ट ऑफ कॉनिंग, यू बिकम ए कॉन आर्टिस्ट। सो मुझे नहीं लगता उसमें कोई कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम थी। मेरा विजन चेंज होता गया, क्योंकि मैं जब भी स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट को पलट के देखता था तो मुझे स्टेल लगता था कि ये तो अब मेरे लिए नहीं है। पर एक जो उसकी लव स्टोरी का जो एक बीज था उसके अंदर, वो मुझे हमेशा खींचता था। तो ये कहानी, इसलिए अभी जब पहले सवाल पूछा था, ये स्क्रिप्ट वो है ही नहीं जो मैं बनाना चाहता था। ये तो कोई दूसरी स्क्रिप्ट है जो, और अपने आप में स्क्रिप्ट और फिल्म दे बिकम ए लिविंग बीइंग, कि वो आपको उंगली पकड़ के लेके जाती है। अगर आप चाहें तो कि इधर जाना, तो वो फिल्म आपको उधर कि मुझे नहीं जाना है। और अगर आप जाने लगे तो फिर आपके एक्टर्स हैं जो आपको खींचते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको वापस पटरी पे लेके आते हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये फिल्म मेकिंग का काम। और इसमें इस तरह के जॉनर को, जहाँ पे आपको एंटरटेन भी करना है, आपको अपनी एक जो अपनी मोहर है, अपनी छाप है, वो भी बचा के रखनी है, और जितने लोगों तक पहुंच सकें और ये मुझे लगता है कि पहली बार इस फिल्म में मुझे लग रहा है कि मैंने वो अचीव किया है। Thank you so much, sir. It's time for a final picture, and for that, I'd like to invite, of course, Farida ji, please up stage. विशाल लगेगा। थैंक यू सर। सर सेंटर सर सामने सर यहाँ पे सर सेंटर सर